Dear students, welcome to Social Science Tutorials. We are back with another video to help in assignment for education subject for semester 1 BA program in SOLDU English medium. If you are new to our channel or have not subscribed yet, please subscribe our channel. If you like the video, do like, share and comment. I will be bilingual in my presentation and the text will be presented in English. Let's start. We are beginning with the question number 3, which has two parts. A part, how has Paulo Freire criticized school education based on the banking concept of education? Paulo Freire is mentioned at Paulo Freire in your assignment, so please make that correction. It's not Freire, it is Freire. Do you agree with the criticism? Place argument in support of your answers. The next point is about explain the concept of rationalization and problem posing education propounded by Paulo Freire with examples. According to you, what kind of change is needed to make education rational and liberating? So it has two parts and both parts also have several pointers to explain. So in introduction, you will write about Paulo Freire, who is Paulo Freire and what is his take on education. तो Paulo Freire कहाँ के थे, थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या काम था उनका, और उसके बाद मेन आंसर की तरफ पहुँचेंगे. Paulo Freire, a Brazilian philosopher, is known for his work with adult illiterates and for promoting critical pedagogy in educational field. As an instrument of socialization, schools not only impart knowledge and skills but all enforce social norms and obedience to the authority. तो यही काम होता है schools का, socialization का प्लस सोशल नॉर्म्स और जो भी ओबीडियंस है कि जो सत्ता है, अथॉरिटी है, उस पर उसको लोग माने. इन दीज सर्कमस्टेंसेस स्कूल्स एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेगेमनी टू एक्सटेंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप. अकॉर्डिंग टू Freire, the social relations are made authoritative and dominant by the advantaged person who belong to the class of oppressor. The remaining members of society constitute the oppressed. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का जो रिलेशनशिप है, इसी पे सारा काम फ्रेरे का है. तो वही कहते हैं कि जो एडवांटेज वाली जो जगहें होती हैं, जो डोमिनेंट वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जो शक्ति होती है, पावर होती है, डोमिनेंस होता है, वो एडवांटेज्ड जो पर्सन होते हैं, ऑप्रेसर जो होते हैं, उनके हाथ में होता है, और वो रिमेनिंग जो दूसरा ग्रुप है वो ऑप्रेस्ड होता है. तो एजुकेशन भी इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस ऑपरेशन को, इस एक्सप्लॉयटेशन को बनाए रखने का एक टूल की तरह काम करता है. अकॉर्डिंग टू फ्रेरे, this imperative process is expedited by many tools and one of these tools is education. तो ये जो भी रिलेशंस हैं एक्सप्लॉयटेशन के, वो डिफरेंट टूल्स से बढ़ाए जाते हैं, बनाए रखे जाते हैं, और एजुकेशन भी उनमें से एक है. लेट्स स्टार्ट. Now coming to banking concept of education. Banking concept of education is the most significant theme of Freire's critical pedagogy. As discussed above, it perpetuates the dominant and exploitative social relations and helps in maintaining the status quo. Social के साथ यहाँ पर relations भी आएगा. Social relations. According to him, schools work like banks where the students are depositories and the teacher is the depositor. बैंकिंग कॉन्सेप्ट इसीलिए उन्होंने कहा इसे बैंक की तरह स्कूल काम करते हैं, जहाँ टीचर कुछ चीज़ें डिपॉजिट करते हैं और बच्चे जो हैं वो डिपॉजिटरीज होते हैं. टीचर इंस्ट्रक्ट एंड मेक डिपॉजिट which the students patiently receive, memorize and repeat. This is the banking concept of education, in which the scope of action allowed to the student extend only as far as receiving files and
स्टोरिंग द डिपॉजिट। तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं होता, बस वो जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको रिसीव करता है, उसको फाइल करता है और उसको डिपॉजिट करके रख लेता है। नाउ these points are taken from his famous book Pedagogy of the Oppressed, where he discussed about the banking system of education। तो आपसे भी ये एक्सपेक्टेड है कि आप इन पॉइंट्स को लिखें, आप इनको एक बॉक्स बना के उसमें लिख सकते हैं। सो वी आर बेसिकली discussing about the banking system of education and its characteristics. So these are the characteristics which you can write. You may write all these characteristics or you can skip one or two. For example, a teacher teaches and students are taught। तो बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम में यही होता है, सब कुछ टीचर करता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैसिव होते हैं। लाइक द टीचर नोज एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नो नथिंग। द टीचर थिंक्स एंड स्टूडेंट आर थॉट अबाउट। द टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट ओनली लिसन। द टीचर डिसिप्लिन्स and students are disciplined. Likewise, there are other points you can write about them. Now coming to the second part of the question from part A. Paulo Freire's criticism of school education based on the banking concept of education। तो इस banking concept of education के according वो स्कूल जो larger school education है उसको कैसे criticize कर रहे हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज Paulo Freire criticized school education based on the banking concept of education on the following basis। The first point is teacher student relations are based on domination and exploitative in nature rather than cooperative and having equal say in the process। तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो इक्वल नहीं होता है। In this type of educational process, the knowledge is consumed without any criticism and discussion. The students never develop critical thinking and approach in this process। तो बैंकिंग एजुकेशन के सिस्टम में स्टूडेंट्स के पास क्रिटिसाइज करने या डिस्कस करने का स्पेस ही नहीं होता है, तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो पाती है। इन बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ the students are ignored at the first step and considered as empty vessels। यानी वो खाली बर्तन की तरह समझे जाते हैं और उनको इग्नोर ही किया जाता है। वो पैसिवली रिसीव द नॉलेज, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो कोई कहीं पे भी कोई सक्रिय भागिता है, एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता स्टूडेंट्स का। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी क्वेश्चन होता है उस पर आपकी ओपिनियन पूछी जाती है और उस ओपिनियन को हाईलाइट करते हुए लिखना ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल अलग पैराग्राफ में आप लिखेंगे। सो आई अग्री विद दी Paulo Freire's critique of school education based on the banking concept of education। उन्होंने यही पूछा था कि डू यू अग्री और यू डोंट अग्री। सो यू अग्री। दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन weakens the creative and critical faculty of the learners। It developed the tendency of consuming knowledge without questioning and understanding, does not prepare learner or student to change the exploitative social relations, rather it train them to fit to those relations and maintain the status quo of dominance। तो क्या क्रिटिक है उनका, वो इस बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से क्रिटिक कर रहे हैं कि इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता, साथ ही साथ वो नॉलेज को बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना समझे हुए यूँ का यूँ ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको ही सिर्फ बढ़ावा देता है। और ये स्टूडेंट्स को कोई भी जो उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव सोशल रिलेशंस हैं सोसाइटी में उनको चेंज करने के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि उनको और बढ़ाए रखने के लिए और उनमें फिट होने के लिए उनको तैयार करता है। ये Paulo Freire का क्रिटिक है कि स्कूल एजुकेशन जो बैंकिंग पर आधारित है वो ऐसा काम करती है। ओके, नाउ कमिंग टू द बी पॉइंट, rationalization। Rationalization is a process in which individuals and communities develop critical understanding of one's social reality through reflection and action। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म्स हैं, आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं इसको, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। तो रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग या जो भी समूह है वो अपनी जो भी सामाजिक उनकी स्थिति है, जिस तरह का सोशल रियलिटी है कि कैसे सोशल रिलेशंस में वो हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और समझने में रिफ्लेक्ट करना यानी सोचना इम्पॉर्टेंट होता है और उनको बदलने के लिए उस पर काम करना ज़रूरी होता है।
दोनों चीज़ें जो सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट है वो है दैट दे रिफ्लेक्ट एंड दे डू एक्शन इन रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस में रैशनलाइजेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोसेस ऑफ कॉन्शियंटाइजेशन। ये एक टर्म है जो काफ़ी फेमस टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस या कॉन्शियंटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों एक ही है। दिस रिफ्लेक्शन एंड एक्शन इज द की टू ट्रांसफॉर्म द रियलिटी। तो आपकी जो भी सोशल रियलिटी अगर उसको बदलना है तो उसके लिए सोचना और उसके ऊपर काम करना, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दिस रिक्वायर एग्जामिनिंग एंड एक्टिंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द ऑपरेशन एज एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल सो दैट देयर कंडीशंस कैन बी इम्प्रूव्ड। ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस वर्किंग विद पुअर फार्मर्स के साथ उन्होंने काम किया था, he realized that these poor farmers need to understand their social conditions, examine the structure of exploitation, and then need to take action to improve their relations and the overall structure। तो जब भी उन्होंने पुअर फार्मर्स के साथ काम किया, उनको जब पढ़ाया, एडल्ट एजुकेशन सिस्टम में वो थे, तब उन्हें ये समझ आया कि ये आवश्यक है कि ये जो पुअर फार्मर्स हैं वो अपनी सोशल कंडीशन को समझ और बदल तभी सकते हैं जिससे पहले उन्हें ये समझ आए कि सोशल कंडीशंस हैं क्या, फिर वो जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है उसको समझ पाए और फिर उसके बाद उसे चेंज करने के लिए, एक्शन करने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाए। तो एजुकेशन बेसिकली उन्हें तैयार करती है रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें एग्जामिनिंग, एक्टिंग यानी एक्शन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेरे सिर्फ इस तरह की एजुकेशन की बात नहीं करते जिस एजुकेशन में सिर्फ आपको चीज़ें विश्लेषित करना, एनालाइज करना सिखाया जाता है, एग्जामिन करना सिखाया जाता है, बल्कि वो साथ में आपको एक्ट करना भी सिखाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर। नाउ कमिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा में ये रैशनलाइजेशन क्या है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन रैशनलाइजेशन गो बियॉन्ड सिंपली अटेनिंग द टेक्निकल स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा का मीनिंग ये है कि पढ़ लिया और पढ़ना लिखना सीख लिया, उसके टेक्निकल स्किल हमें आ गए। इट डिमांड्स अ कल्चर ऑफ एक्शन टू चेंज द एक्सप्लॉयटेटिव सोशल रिलेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फर्दर इट इज़ अ की स्टोन in ending the culture of silence in which oppression is not mentioned and thereby sustained. Paulo Freire says that we all inculcate social myths which have a hegemonic tendency, and so learning is a critical process which depend upon uncovering real problems and determining actual needs। कहने का यह यहाँ जो मीनिंग है वो यही है कि जो एजुकेशनल प्रोसेस है उस एजुकेशनल प्रोसेस को जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको अनकवर करने और उनके लिए, उनको सुधारने के लिए जो है एक्चुअल नीड्स और एक्चुअल गोल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं जिन पे हम ऐसे ही सुन के विश्वास कर लेते हैं, उसकी बजाय हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है रियल प्रॉब्लम्स पर। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, दिस इज़ हिज अनदर फेमस वर्क फॉर पेडागोगी, यानी जो टीचिंग जो स्टाइल है उसको लेकर उन्होंने एक प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन दी है। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड एट ऑल्टरनेटिव टू दी बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बाय फ्रेरे। तो जिस तरह की बैंकिंग एजुकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा, उसके ऑपोजिट में, उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन दी। यानी फ्रेरे के अकॉर्डिंग एजुकेशन बैंकिंग कॉन्सेप्ट पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए, बल्कि वो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन होनी चाहिए। एज वी डिस्कस्ड अबव, बैंकिंग एजुकेशन डू नॉट प्रिपेयर लर्नर टू फाइट द एक्सप्लॉयटेटिव सोशल स्ट्रक्चर एंड टू चेंज द अथॉरिटेटिव रिलेशंस which should be basic aim of education. Education should prepare learner to critically think and put it into action to change the reality. It is the problem posing education which through its pedagogy thrive for liberation of human being, and here liberation mean the thinking and acting of the people in order to transform the world in which they live. तो problem posing education लोगों को liberate करती है, और liberation से meaning क्या है कि वो सोच और समझ पाते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो क्या है और उसको एक्ट कर पाते हैं ताकि वो उसे चेंज कर सके। अकॉर्डिंग टू फ्रेरे, ह्यूमन बीइंग और लर्नर इज ए कॉन्शियस बीइंग
सचेत होते हैं हम, कॉन्शियस होते हैं, एंड ही और शी स्टार्ट्स एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू अ फीलिंग ऑफ epistemological curiosity, so they must be engaged and involved in the process of education। यानी जब सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है तभी लोग सीखते हैं, तो इसीलिए एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर उनको निष्क्रिय नहीं मानना चाहिए, उनको एक्टिव मानना चाहिए। जो वो एक्टिव होते हैं तब वो चीज़ें सीखते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने ये बार बार बैंकिंग एजुकेशन में क्रिटिक किया है कि लोग जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें बच्चों को अगर आप इंगेज नहीं करेंगे, लर्नर को इंगेज नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ पाएगा, वो नॉलेज कैसे गेन कर पाएगा। इन प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन लर्निंग इज अ प्रोसेस where presented knowledge is shaped through deliberation, dialogue and critical analysis। तो प्रॉब्लम पोजिंग जो एजुकेशन है उसके अंदर डायलॉग इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। डायलॉग कब होगा? जब रिलेशंस जो हैं टीचर और स्टूडेंट के वो बराबर होंगे, क्वेश्चनिंग हो सकती है, उसके ऊपर ओपिनियन बिल्डिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टीचिंग अबाउट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, वी नीड टू फाइंड एग्जाम्पल्स और वेज and text from different sources. After that, we should not limit to just lecture mode in our pedagogy, but we should include discussion, debate, questioning sessions, opinion building and involving students' experiences in all mentioned processes। तभी वो problem posing education होगी। Thus, the main objective of education is to raise the awareness of the students, to mold them into subject rather than objects of the world। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को, और ऑब्जेक्ट की तरह अगर हम उन्हें ट्रीट करेंगे तो सब कुछ यही माना जाएगा कि गिवन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं और हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन बेसिकली बात करती है दैट इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट्स, दे कैन चेंज देयर सोशल रियलिटी। To achieve this, students need to be taught to think democratically and to constantly question and make meaning from everything they learn। तो जो भी चीज़ें हैं लगातार जो है लर्नर को उनको क्वेश्चन करने, उनको सोचने, लगातार उनको सोचते रहना है, देना ज़रूरी है और उसके ऊपर काम करने के लिए उनको तैयार करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू फ्रेरे, teaching is a political and democratic process। The teacher must learn about and from the students to co-construct the knowledge in ways that are meaningful for student। तो टीचर स्टूडेंट दोनों ही जो है जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसमें सीखते हैं और को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट मीन्स उनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी डोमिनेंट रिलेशनशिप नहीं है बल्कि कॉपरेशन बेस्ड रिलेशंस हैं। We also need to critically think, analyze and find ways to overcome this social problem। Just this will not be sufficient for this type of educational system, rather what has been taught as solution must be acted upon by student। For example, awareness program in the vicinity। तो जैसा अभी हम ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ये उससे रिलेटेड है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने लायक बच्चों को बनाना, बल्कि वो कुछ काम भी करें, इसके लायक उनको बनाते हैं प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन डिमांड्स टीचिंग एज अ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द चेंजेस नीडेड टू मेक एजुकेशन रैशनल एंड लिबरेटिंग। ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट का, बी पॉइंट का सेकेंड पॉइंट चल रहा है because they asked about the changes that we need to make education rational and liberating। So we can write that education must include both reflection and action। तो सिर्फ एनालिसिस नहीं बल्कि उसके साथ एक्शन भी ऐड करने की ज़रूरत है। मस्ट पोज क्वेश्चन ऑन द सोशल रियलिटी। इट मस्ट इंक्लूड लर्नर एक्सपीरियंसेस एज बेसिस ऑफ क्लासरूम प्रोसेसेस। इट मस्ट बी डायलॉजिक प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इट मस्ट इंक्लूड प्रोग्राम कंटेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस थीमेटिक यूनिवर्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमने क्रिटिक के तौर पे ही निकालें कि क्या क्या चीज़ें एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए, तब एजुकेशन जो है रैशनलाइजेशन और प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का मॉडल बन सकती है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, वी कैन राइट दैट ही एडवोकेटेड एन एजुकेशनल सिस्टम where students are considered as conscious, aware
analytical and critical thinkers who are ready to change their social reality through action. Thus, such education must focus on critical thinking, dialogues, and equality. Thus, I can assert that Freire's critique of banking education and related discourse can be seen as a foundation of his ideas about rationalization process and problem posing education. तो अब यहाँ हम रीइटरेट कर रहे हैं कि जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट था एजुकेशन का, उसका जो क्रिटिक था उसी ने फाउंडेशन बना वो रैशनलाइजेशन प्रोसेस और प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को डिस्कस करने का. ही प्रोपाउंडेड इट in a education system which believed in the critical competence of human being, which has potential to work on its social environment. तो वो जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के कॉम्पिटेंस में बिलीव करता है और साथ ही साथ ये मानता है कि ह्यूमन बीइंग अपने सोशल इन्वायरमेंट को ठीक करने की क्षमता रखता है. His educational pedagogy strive towards developing these potentials and motivate human beings to change his or her social relations which are responsible for exploitation of certain group by other group in any given society. तो पूरा जो उनका एजुकेशनल पेडागॉजी है वो इसी तरह के लिबरेशन की बात करता है और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग में एक पोटेंशियल ढूंढने की बात करता है. वो कहता है कि पोटेंशियल होता है और वो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो अपने जो भी इन्वायरमेंट है उस पर काम कर सकते हैं और जो एक्सप्लॉयटेटिव अगर रिलेशनशिप्स हैं तो वो उनको चेंज करने की तरफ जा सकते हैं. तो ऑप्रेसर जो ग्रुप है और ऑप्रेस्ड जो ग्रुप है उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे वो ख़त्म हो सकते हैं. ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स.